Welcome, my dear students, to the next session on relative speed. And we've already discussed about relative speed, that there are basically two cases. The first case, when the bodies are moving, when the objects are moving in the same direction. And second case, when the objects are moving in the opposite direction. When objects are moving in the same direction, and if let us say the object behind is moving at the speed s1 and the second object is moving at the speed s2, दोनों का speed क्या है, s1 और s2. तो if s1 is less than s2, अगर जो चेज कर रहा है उसका स्पीड लेसर होगा, तो क्या कभी चेज कर पाएगा, क्या कभी मिल पाएगा, क्या कभी मीटिंग पॉसिबल होगी? तो इन दैट केस द मीटिंग विल नॉट बी पॉसिबल. मीटिंग नॉट पॉसिबल. So in all the questions, S1 will definitely be greater than S2 if meeting has to happen. ठीक है, और रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा, स्पीड रिलेटिव विल बी इक्वल टू S1 माइनस S2. एंड इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू D, तो टाइम टेकन will be equal to D upon S1 minus S2. Second scenario is when the objects are moving in the opposite direction. So if distance between them is equal to D, time taken will be D upon relative speed, और relative speed होगी हमारी addition of both the speeds. If speeds are S1 and S2, तो relative speed आ जाएगी S1 plus S2 and hence time taken will be equal to D upon S1 plus S2. Is that clear? ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं आप. फर्स्ट क्वेश्चन, two cars A and B are 60 kilometers apart and they are traveling in the same direction. If speed of A and B are 75 and 39 km per hour respectively, then after how much time will car A be overtaking car B? तो दोनों की स्पीड्स हमें गिवन है, they are going in the same direction. If they are going in the same direction, distance is 60 kilometers. And car A will be overtaking after some time. कार A की स्पीड है 75 एंड कार B की स्पीड है 39. तो कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा? जितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये डिस्टेंस ओवरकम कर लेगा. तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, दैट विल बी 75 माइनस 39. डायमेंशन हमेशा चेक कर लेना है, सेम यूनिट में है कि नहीं है. 60 किलोमीटर्स में और ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस विल बी 60 अपॉन 36 विच इज 5/3 आवर्स. And minutes में this will be into 60, so that will be equal to 100 minutes. The answer will be 100 minutes. After 100 minutes, the car A will be overtaking car B. Clear? ठीक है. अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कार A का पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A, that will be equal to time, that is 100 minutes, यानी 100 by 65/3 hours multiplied by 75. तो इससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार B, और सिमिलरली कार A का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार B भी सिमिलरली निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एंड तान्या आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट्स A and B respectively. They meet after 1 hour and 6 minutes. If the distance between them is 10.12 kilometers and speed of Ravi is 2 km per hour more than Tanya, then find the speed of Tanya. So distance between them is given and Ravi and Tanya, they are walking towards each other, यानी कि opposite direction में मूव कर रहे हैं. टाइम की वैल्यू भी गिवन है, they will be meeting after 1 hour and 6 minutes. The distance between Ravi and Tanya, that is 10.12 kilometers. And we also know that speed of Ravi is 2 km per hour more than Tanya. So if the speed of Tanya is S, the speed of Ravi will be S plus 2. And since they are moving in the opposite directions, relative speed हो जाएगा addition of these two values, यानी कि S plus S plus 2. So that will be 2S plus 2. And they are meeting after 1 hour and 6 minutes. और 6 मिनट्स हमारा है 1/10 आवर्स. तो 1 and 1/10 आवर्स के बाद में दे विल बी मीटिंग अप. तो टाइम टेकन इज 11/10 आवर्स एंड टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड. इजंट इट सो? ठीक है. या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू
स्पीड, रिलेटिव स्पीड, क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो हम स्पीड कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10.12 और टाइम है 11/10 डिवाइडेड बाई 11/10। 11 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा 99, फिर बच गया 2 हमारा 22, तो 0.92 एंड दिस 10 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड, तो 9.2 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी अवर रिलेटिव स्पीड एंड दिस विल बी इक्वल टू 2s+2। तो s विल बी इक्वल टू 2s विल बी इक्वल टू 9.2 माइनस 2 यानी कि 7.2, सो s विल बी इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है स्पीड ऑफ तान्या, और स्पीड ऑफ तान्या इज इक्वल टू s ओनली, सो आंसर विल बी 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ रवि पूछा होता तो दैट वुड हैव बीन s+2 विच इज 5.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are 90 kilometers apart. If they move towards each other, they meet in 2 hours. But if they move in the same direction, then P overtakes Q in 6 hours. What are the speeds of P and Q respectively? So first thing first, if P is overtaking Q when they are moving in the same direction, so definitely speed of P will be greater than the speed of Q. Isn't it so? If P is overtaking Q after 6 hours, यानी कि P की स्पीड Q से ज़्यादा होगी, क्योंकि P और Q 90 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, P का स्पीड Q से ज़्यादा होगा तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। स्पीड P और Q की पूछ रहा है। फर्स्ट केस में दे आर मीटिंग आफ्टर 2 hours, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और फर्स्ट केस में दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो केस 1 में दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा SP, स्पीड ऑफ P प्लस स्पीड ऑफ Q, एंड टाइम टेकन इज 2 hours, तो 2 into SP plus SQ, that is the travel distance which is 90. So speed of P plus speed of Q will be equal to 90 by 2 यानी कि 45. This is our first equation. This is our first equation. Second case में they are moving in the same direction. Same direction में move कर रहे हैं, तो speed हमारा हो जाएगा relative speed SP minus SQ because SP is greater than SQ. And time taken is 6 hours का, तो 6 hours में distance travel कितना होगा? Relative distance travel कितना होगा? That will be 90 kilometers. So SP minus SQ, that multiplied by 6, that is equal to 90. So from here SP minus SQ हमारा आ जाएगा 90 by 6 which is 15. ठीक है, इंस्टेड ये तुमको समझाने के लिए मैं इतनी सारी कहानी लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुम स्ट्रेट अवे लिखोगे 90 by 2 यानी कि 1 आवर में 45 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो SP प्लस SQ यानी कि पहले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड सम आ रहा है 45। सेकंड केस में 6 आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं 90 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी कि 1 आवर की स्पीड विल 15 किलोमीटर पर आवर, डेफिनेटली SP माइनस SQ विल बी इक्वल टू 15। अब दोनों को ऐड कर देंगे, सो व्हेन वी आर एडिंग दीज टू, स्पीड ऑफ P 2 टाइम्स स्पीड ऑफ P, दैट विल बी इक्वल टू 60, यानी कि स्पीड ऑफ P विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का सम था 45, तो स्पीड ऑफ Q आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। दीज विल बी द वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स SP and SQ, that will be 30 and 15 kilometer per hour respectively. Clear? Okay. Next question. A person from town P starts walking at 6 a.m. and reaches town Q at 9:30 a.m. Another person from town Q starts walking at 8 a.m. and reaches town P at 12 p.m. At what time will they meet each other? So in the first case, there is a person. Let us say the person is P1 and P1 is starting from town P. या फिर A मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन को मान लेते हैं A. Person 1 is A and person 2 is B. Okay, so A is walking from town P towards town Q and A is starting walking at 6 a.m. ठीक है, तो A स्टार्ट करता है वॉक करना at 6 a.m. and reaches town Q at 9:30. तो टाइम कितना ले रहा है? 6 a.m. से 9:30 तक he is taking 3.5 hours. तो टाइम टेकन by A is 3.5 hours. Similarly, B starts from town Q not at 6 a.m. but at 8 a.m. So B is starting at 8 a.m. and he reaches town P at 12 p.m. So time taken to travel the distance PQ that is equal to 4 hours by B. डिस्टेंस सेम है दोनों के केस में, टाइम का रेशियो क्या रहा है? 3.5:4 का रेशियो आ रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो आ रहा है 7:8 का। तो स्पीड का रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, 8:7 का रेशियो होगा। ठीक है, 8:7 का रेशियो होगा।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बी मीटिंग ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम द डिस्टेंस, डिस्टेंस की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को अपना इजीली सॉल्व कर सकें। तो क्या वैल्यू एज्यूम करें, किसी भी एक से मान लो, लेट अस से स्पीड हमारा 7 है बी का और टाइम लग रहा है बी को 4 आवर्स का, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 7 into 4 विच इज 28 किलोमीटर्स। So it is the distance between P and Q that is equal to 28 kilometers. ओके, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 28 किलोमीटर्स और ए का स्पीड है 8, ए को लग रहा है 3.5 आवर्स, फाइन। बट ए स्टार्ट कर रहा है डिफरेंट टाइम पे और बी स्टार्ट कर रहा है डिफरेंट टाइम पे, तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। कभी भी मीटिंग का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो पर्पस है, सबसे पहला हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो दोनों का टाइम सेम करने का होना चाहिए। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, ए को पहले 2 आवर्स ट्रैवल करा देते हैं बिकॉज 6 AM पे ए अकेला ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, बी ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा एट 8 AM। तो फ्रॉम 6 AM to 8 AM ए विल बी ट्रैवलिंग अलोन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए कितना हो जाएगा, ए का स्पीड है 8 यूनिट्स का, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 8 into 2 विच इज 16 किलोमीटर्स। एंड इफ ए हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर्स, अच्छा अप टू स्केल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 16 किलोमीटर छोटा दिखेगा, बचा हुआ डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर्स का है और अब ए हमारा इस पोजीशन में पहुंच गया है, बी अब स्टार्ट करेगा ट्रैवल करना, ए का स्पीड है 8 का, बी का स्पीड है 7 का, और ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा, ये 8 AM का पिक्चर है, ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस रिमेनिंग दैट इज 12 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 8 + 7, देखिए 12/15 विच विल बी 4/5 आवर्स, और 4/5 आवर्स होता है हमारा 48 मिनट्स के बराबर, दिस इज 48 मिनट्स। तो कब मिलेंगे, 8 AM के बाद 48 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 8:48 AM पे दे विल बी मीटिंग अप। द मीटिंग टाइम विल बी 8:48 AM। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The distance between two cities, Kanpur and Nagpur, is 111 kilometers. A bus starts from Kanpur towards Nagpur at 6 AM with speed 18 km per hour. Another bus starts from Nagpur towards Kanpur at 8 AM with speed 12 km per hour. At what time will they be crossing each other? सिमिलर क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बस हमारी स्टार्ट करी है 6 AM पे, दूसरी स्टार्ट करी है 8 AM पे। स्पीड ऑफ द बस स्टार्टिंग एट 6 AM इज 18 km per hour, स्पीड ऑफ द बस स्टार्टिंग एट 8 AM इज 12 km per hour। टोटल डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर टू नागपुर। ओके, सबसे पहला काम, दोनों का टाइमिंग सेम करो। तो 6 AM पे जो बस हमारी स्टार्ट कर रही है कानपुर से, 8 AM तक कितना ट्रैवल करेगी, फ्रॉम 6 AM to 8 AM दिस विल बी ट्रैवलिंग डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड है 18 का, 18 into 2 36 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस रिमेनिंग विल बी 111 - 36 विच विल बी 75 kilometers. Okay, so now this bus is traveling at the speed of 18 and the second bus starting from Nagpur with the speed 12. अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारा 75 किलोमीटर का, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस रिमेनिंग विच इज 75 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दैट विल बी 18 + 12 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 75/30 विच विल बी इक्वल टू 5/2 आवर्स विच इज 2.5 आवर्स। ठीक है, सो 8 AM के बाद 2.5 आवर्स और लगेंगे, तो मीटिंग टाइम विल बी, दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर 8 + 2.5 यानी कि 10:30 AM पे दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर। दिस विल बी अवर आंसर 10:30 AM। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एंड हिज वाइफ प्रिया प्लान्ड अ ट्रिप टू मनाली। ओवर सम ट्रिवियल इशू प्रिया वेंट अलोन इन हर कार टूवर्ड्स मनाली विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM। ठीक है, तो एक ट्रिप प्लान किया था अमन ने और उसकी वाइफ ने, बट देयर वाज सम इशू, कुछ प्रॉब्लम हो गया उनके बीच में, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रिवियल इशू प्रिया वेंट अलोन इन अ कार, अकेले चली गई मनाली की, अब अकेले एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM अमन स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स मनाली ऑन अ टैक्सी एट 8 AM। अमन 2 घंटे बाद क्यों स्टार्ट कर रहा है, सोता रह गया होगा शायद, 8 बजे उठा होगा, 8 बजे उठ को उसको आइडिया लगा
किस्सा खत्म हो गया कि वो निकल गई ऑलरेडी, ठीक है, उसकी वाइफ। तो एनीवे, अमन स्टार्टेड एट 8 AM विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। तो प्रिया ने स्टार्ट किया था 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 AM पे, 2 आवर्स वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है। और अमन ने स्टार्ट किया एट 8 AM विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। इफ प्रिया टुक ए हॉल्ट ऑफ 20 मिनट्स एट 7:30 AM, एट व्हाट टाइम विल अमन मीट प्रिया? तो टोटल 2 आवर्स ट्रैवल नहीं किया प्रिया ने 7:30 AM पे एक 20 मिनट्स का हाल्ट भी लिया है, ठीक है। सो एट व्हाट टाइम विल अमन मीट प्रिया? पॉज करो वीडियो को, एक बार अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो, सिंपल क्वेश्चन है बट सॉल्व करो अपने एंड पे, ठीक है। सो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम 6 AM टू 8 AM प्रिया अकेले ट्रैवल कर रही है, और उस बीच में भी प्रिया हैज टेकन अ 20 मिनट्स का हाल्ट, ठीक है। सो एज सच फ्रॉम 6 AM टू 8 AM प्रिया का ट्रैवल टाइम कितना है? फ्रॉम 6 AM टू 8 AM ट्रैवल टाइम ऑफ प्रिया कितना है? अगर कोई हाल्ट नहीं लिया होता तो 2 आवर्स होता, बट 20 मिनट्स का हाल्ट लिया विच इज 1/3 आवर्स, so 2 - 1/3 विच इज 5/3 आवर्स, शी मस्ट बी ट्रैवलिंग, isn't it so? ठीक है। सो घर से निकलने के बाद में कितना डिस्टेंस प्रिया ने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया होगा इन दैट मच टाइम? द डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 5/3 आवर्स, और स्पीड है प्रिया की 45, तो 5/3 इंटू 45, तो 5 इंटू 40, 5/3, 5 इंटू 15, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस शी हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड। और अब स्टार्ट करेगा अमन। सो एट 8 AM शी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स फ्रॉम हर होम, ठीक है। अमन विल स्टार्ट नाउ एंड स्पीड ऑफ प्रिया इज 45 किलोमीटर पर आवर, and Aman will also start moving in the same direction with a speed of 70 km per hour. Isn't it so? डायरेक्शन सेम है, और अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 75 का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 70 - 45, और टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस दैट इज 75 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दैट विल बी 70 - 45, तो 75/25 which will be equal to 3 hours. So after 3 hours they will be catching up. After 3 hours Aman will be able to meet Priya. तो 3 आवर्स कब से स्टार्ट होंगे? 8 AM के बाद स्टार्ट होंगे, बिकॉज 8 AM पे हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। सो 8 AM प्लस 3 आवर्स, टाइम टेकन विल बी 11 AM. एट 11 AM दे विल बी मीटिंग, isn't it so? Clear? Okay. Next one, next question. The driver of an auto rickshaw sees a person 70 meters ahead of him. The person is 110 meters behind after 30 seconds. तो जब ऑटो रिक्शा वाले ने देखा सबसे पहली बार पर्सन को, तो पर्सन वाज 70 meters ahead, बट आफ्टर 30 seconds द पर्सन इज 110 meters behind. तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा दो तरह से पॉसिबल है, इधर ऑटो रिक्शा वाज मूविंग फास्टर देन द पर्सन, या फिर पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, isn't it so? या फिर पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। दोनों केसेस बन सकते हैं हमारे, क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। फर्स्ट केस हमारा क्या है कि ऐसा हो सकता है, देखो दिस इज द ऑटो रिक्शा लेट अस से, ओके, एंड इन द फर्स्ट केस इट इज सीइंग द पर्सन 70 meters ahead, और सेकेंड केस में ही सीइंग द पर्सन 110 meters behind. और ऑटो रिक्शा अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है, बिकॉज ऑटो रिक्शा भी मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा कितना है? दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर. ऑटो रिक्शा इज मूविंग फॉरवर्ड विद स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। अब पर्सन की हमें स्पीड नहीं पता है, पर्सन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, फॉरवर्ड जा रहा था या फिर बैकवर्ड जा रहा था, ठीक है। दोनों कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? अगर पर्सन फॉरवर्ड जा रहा था तो स्पीड स्लो रही होगी उसकी, तभी तो ओवरटेक कर लिया और 110 मीटर्स बिहाइंड हो गया। पहला केस ये बन सकता है, इजंट इट सो, कि पर्सन फॉरवर्ड जा रहा हो। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि मे बी पर्सन बैकवर्ड जा रहा हो खुद, और अगर पर्सन बैकवर्ड जा रहा होगा तो क्या होगा? स्पीड्स उनकी एडअप होंगी, स्पीड्स उनकी एडअप होंगी, इजंट इट सो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो इनिशियली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस देखें, यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस देखो, तो मान के चलो कि ऑटो रिक्शा हमारा स्टॉप्ड है, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं ऑटो रिक्शा हमारा स्टॉप्ड है, तो टोटल डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज टोटल 110 + 70 यानी 180 मीटर्स, यानी कि ऑटो रिक्शा के रिस्पेक्ट में, रिलेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन कितना है? 180 मीटर्स है, 180 मीटर्स है। तो यहां से हमें स्पीड की वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज टाइम टेकन कितना है? 30 सेकंड्स का है, टाइम टेकन इज ऑफ 30 seconds, isn't it so? तो स्पीड विल बी 180 meters
डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स विच विल बी 6 मीटर्स पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में दिस विल बी 6 इंटू 18/5, तो दैट विल बी 18 इंटू 6 108/5, यानी कि 21.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव स्पीड। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि रिलेटिव डिस्टेंस हमारा हुआ 180 मीटर्स का, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 180 मीटर्स डिवाइड बाई 30 सेकंड, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड, जो कि हो जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड हमारी आ रही है रिलेटिव स्पीड, दिस इज लेस देन स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा। ये ऑटो रिक्शा की स्पीड से कम है, और अगर ये स्पीड ऑटो रिक्शा की स्पीड से कम है, दैट एम्प्लाइज कि हमने जो रिलेटिव स्पीड में जो स्पीड ऑफ द पर्सन होगी वो सब्ट्रैक्ट की होगी, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। इजंट इट सो कि स्पीड हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ द ऑटो माइनस द स्पीड ऑफ द पर्सन, दैट इज 21.6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, इन दैट केस स्पीड एडअप होती और डेफिनेटली 28 से ज्यादा होता वैल्यू, बट 28 से कम वैल्यू आ रहा है, यानी कि डेफिनेट सी बात है कि पर्सन हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा था। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। क्लियर है? द केस विल बी फॉर श्योर दैट ही विल ऑल्सो बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑटो रिक्शा, सेम डायरेक्शन वाला केस होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कैसे हमने डिटरमाइन किया? हमने रिलेटिव स्पीड निकाल के डिटरमाइन किया। अगर रिलेटिव स्पीड हमारा 28 से ज्यादा आता, इफ रिलेटिव स्पीड वाज ग्रेटर देन 28 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 28 किलोमीटर पर आवर हमारी ऑटो की स्पीड है, इन दैट केस डेफिनेटली पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता। ठीक है, कि ऑटो रिक्शा और पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, बट इन दिस केस दे आर बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, एंड स्पीड ऑफ ऑटो इज 28, तो 28 माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन, दैट इज 21.6 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ द पर्सन हो जाएगा 28 माइनस 21.6, एंड हेंस दैट विल बी इक्वल टू 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द आंसर, 6.4 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन था, ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा सीज द पर्सन 70 मीटर्स अहेड, तो पर्सन वाज ऑलरेडी 70 मीटर्स अहेड, बट आफ्टर सम टाइम द पर्सन इज 110 मीटर्स बिहाइंड, यानी कि ऑटो रिक्शा ने उसको ओवरटेक कर लिया। यही तो बात हुई ना, ऑटो रिक्शा ने उसको ओवरटेक कर लिया। ठीक है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जा रहा होता तो ऑटो रिक्शा ने उसको क्रॉस कर दिया और फिर वो पीछे हो गया। दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। अब दोनों में से कौन सा केस है तो हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, इसके बाद में रिलेटिव स्पीड के लिए अपना डिस्टेंस देखा। डिस्टेंस देखा, अगर ऑटो रिक्शा को हम अपनी पोजीशन पे ही रखते हैं तो पर्सन कितना मूव किया है, 180 मीटर्स मूव किया है। इजंट इट सो? किसी भी एक के रिस्पेक्ट में देख लो, चलो तुम पर्सन को चाहो तो पर्सन को तुम स्टैटिक रख लो, पर्सन अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, वो नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा पहले कहां पे था? पहले था ऑटो रिक्शा 70 मीटर्स बिहाइंड हिम। ठीक है, पहले ऑटो रिक्शा था हमारा 70 मीटर्स बिहाइंड हिम। ठीक है, पर्सन अपनी पोजीशन पे है, और फिर बाद में क्या हुआ, ऑटो रिक्शा हमारा कितना आगे आ गया, 110 मीटर्स आगे पहुंच गया, तो पर्सन 110 मीटर्स आगे पहुंच गया। तो ऑटो रिक्शा का मूवमेंट देख लो, कितना मूव किया है ऑटो रिक्शा, 70 प्लस 110 यानी कि 180 मीटर्स मूव किया है इन रिलेशन टू द पर्सन। अब ये पर्सन मूव कर रहा होगा तब भी यही मूवमेंट है, तब भी ये रिलेटिव डिस्टेंस है, और ये पर्सन स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, तब भी हमारा यानी कि एक जगह पे बैठा हुआ होगा या खड़ा हुआ होगा एक जगह पे, तो भी यही डिस्टेंस होगा रिलेटिव डिस्टेंस हमारा, क्योंकि जहां पे भी रिलेटिव स्पीड की बात आएगी वहां पर रिलेटिव डिस्टेंस की बात भी आएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी हम पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव स्पीड में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डेफिनेटली चाहे तुम ऑटो रिक्शा के रिस्पेक्ट में देख लो या फिर पर्सन के रिस्पेक्ट में देख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 180 मीटर्स का। एक्चुअल डिस्टेंस हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ये रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारा। ठीक है, क्लियर? तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे केस क्या बना कि ऑटो रिक्शा की स्पीड पर्सन से ज्यादा फास्ट है, तभी तो ऑटो रिक्शा आगे निकल जा रहा है। और या फिर केस ये हो सकता था कि हमारा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, बट जैसे हमने रिलेटिव स्पीड निकाला, हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया 21.6 किलोमीटर पर आवर, विच इज डेफिनेटली लेस देन स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा। तो यहां से हमें सर्टेन हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर ये 28 से ऊपर की वैल्यू आता, लेटर से 30 किलोमीटर पर आवर आता, तो 28 तो ऑटो रिक्शा की स्पीड थे, 30 आ गया, इसका मतलब है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। 2 किलोमीटर पर आवर किसकी वजह से आया होगा, पर्सन की वजह से आया होगा। अगर ये 30 होता तो 2 किलोमीटर पर आवर एडिशनल किसकी वजह से आता, पर्सन की वजह से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, बट यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना भी हो कि उतने सेम टाइम में, जबकि ये सिनारियो हुआ है हमारा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पर्सन कितना ट्रैवल किया होगा तो भी निकाल लेंगे, क्योंकि पर्सन की स्पीड हमें मिल गई है। या फिर ऑटो रिक्शा कितना ट्रैवल किया होगा, ऑटो रिक्शा की स्पीड तो ऑलरेडी गिवन थी, ये भी मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तुम उस तरह से भी सोच सकते थे कि पहले हम निकाल लेते हैं कि ऑटो रिक्शा ने कितना ट्रैवल किया होगा 30 सेकंड्स में, 28 की स्पीड है, 28 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 आवर में,
और 30 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? सो दैट विल बी 30 बाई 3600, जीरो से गया जीरो, 120, 28 बाई 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है, 28 बाई 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। बट ये कैलकुलेशन तुम्हारी अननेसेसरी टिपिकल हो जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम सोच सकते थे, कोई सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी सोचा जा सकता था, ठीक है। और फिर हम 180 से इक्वेट करते हैं इसको, हमारे जो डिस्टेंस है डेफिनेटली ये 180 से हमारा ज़्यादा आता, ठीक है। इसको 180 मीटर से इक्वेट करते हैं, और अगर ये 180 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि ऑटो रिक्शा हैज ट्रेवल्ड ग्रेटर देन 180 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑटो रिक्शा हैज ट्रेवल्ड ग्रेटर देन 180 मीटर्स, ये वैल्यू हमारा कितना है? 28 बाई 120 इंटू 1000, जीरो से गया जीरो, और फिर 4 से नीचे बचा 3 और ऊपर बचेगा 25, 28 इंटू 25 आ जाएगा 700 बाई 3। तो 700 बाई 3 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑटो रिक्शा ने। तो फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो रिक्शा कितना है? दैट इज 700 बाई 3 मीटर्स, ओके। जबकि नेट डिस्टेंस क्या है? नेट डिस्टेंस हमारा 180 मीटर्स का है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो पर्सन कहां पे होगा? पर्सन कहां पे होगा? पर्सन ने भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इज दैट इट? सो तो पहले ऑटो रिक्शा यहां पे था, ठीक है, पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? पर्सन था 70 मीटर्स आगे, 70 मीटर्स आगे था पहली वाली पोजीशन में, तो लेट अस से दिस इज 70 मीटर्स, पर्सन पहले यहां पे था, और बाद में पर्सन हो गया है 110 मीटर्स बिहाइंड, तो बाद में पर्सन की पोजीशन यहां पे होगी, 110 मीटर्स बिहाइंड हो गया है, ठीक है, क्लियर है। अब तुम ये बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो 30 सेकंड में पर्सन ने ट्रैवल किया होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर बीच की डिस्टेंस निकालो, ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया, बट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस तरह से भी तुम इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करने का मेथड तो यही रहेगा हमारा, पर समझने के लिए ये पार्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपने एंड पे सॉल्व करके देखोगे। ऐसे हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस तरह से तुम चेकआउट कर सकते हो कि चीजें तुम्हारी सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं सेटिस्फाई कर रही हैं, तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिकॉज अदरवाइज ये शायद सबसे पहली बार देखने में, समझने में शायद इशू हो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस तुम देखोगे कितना आएगा, ये दिस विल बी 700 बाई 3 माइनस 70 प्लस 110 यानी कि माइनस 180, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा हमारा 700 बाई 3 माइनस 180 और माइनस 540 यानी कि 160 बाई 3 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर्सन इन 30 सेकेंड्स। तो स्पीड ऑफ द पर्सन कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 सेकेंड्स में, तो हमारा 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 आवर यानी कि 3600, तो 3600 बाई 30 इंटू 160 बाई 3, ये तो आ गया हमारा 120, तो 120 इंटू 160 बाई 3 यानी 120 हमारा हो जाएगा 40, 40 इंटू 160 यानी कि 6400 मीटर्स ट्रैवल करेगा, तो स्पीड आ जाएगा हमारा 6.4 किलोमीटर पर आवर, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। इस लंबे तरीके में हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहा था या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ये तरीका हमारे लिए बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट हमारे लिए तरीका शॉर्ट हो जाए और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार इज मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग and the car passes the woman walking at 4 km per hour in the same direction. The woman can see the car for 3 minutes and visibility is up to a distance of 130 meters. तो speed of the car क्या होगा? Car is moving in the morning fog and car passes a woman walking at 4 km per hour in the same direction. The woman can see the car for 6 minutes and visibility is up to a distance of 130 meters. तो speed of the car क्या होगा? ठीक है, again pause the video and try to solve it yourself. ठीक है, if you are seeing this question, such question for a first time. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कार मूव कर रही है मॉर्निंग फॉग में, कार एक पर्सन को, एक वुमन को पास करती है, यानी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा डायग्राम क्या होगा? दिस इज द वुमन लेट अस से, ठीक है, और कार इसको पास कर रही है। ओके, ठीक है, और वुमन इज ऑल्सो वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ वुमन इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार इज लेट अस से s किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड देखेंगे, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? वुमन को हमने स्टैटिक मान लिया और स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी s-4, ठीक है, और वुमन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स में डिस्टेंस कितना है? विजिबिलिटी इज ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर्स। तो अगर वुमन सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स तक कार को देख पाती है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि विजिबिलिटी अगर 130 मीटर्स तक है तो 3 मिनट्स के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स कार कहाँ पहुंच गई होगी, 130 मीटर्स की डिस्टेंस में पहुंच गई होगी, रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वुमन भी मूव की होगी थोड़ा आगे, ठीक है, वुमन भी थोड़ा आगे मूव की होगी ड्यू टू हर ओन स्पीड, और कार भी मूव की होगी, ठीक है, कार भी मूव की होगी, तो अब वुमन का नया पोजीशन क्या है, ये, ठीक है, और कार भी हमारा मूव की होगी, बट अब कार दिखना बंद हो जाएगी वुमन को, विच एम्प्लाइज वुमन से कार कितना आगे होगी, 130 मीटर्स की डिस्टेंस पे होगी आफ्टर 3 मिनट्स। तो जो सेकंड वाला सिनारियो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 130 मीटर्स, तभी तो वुमन को कार दिखना बंद होगी इसके बाद। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, 130 मीटर्स होगा, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, दिस रिलेटिव डिस्टेंस विल बी s - 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्योंकि हम रिलेटिव डिस्टेंस की ही बात कर रहे थे, इसलिए हमको हम अगर वुमन को स्टेशनरी कर देते तो हम डायरेक्टली देख लेते कि s - 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट्स में द कार विल बी ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर्स। 3 मिनट से 130 मीटर्स ट्रेवल कर रही है, तो अगर 3 मिनट से ट्रेवल कर रही है 130 मीटर्स डिस्टेंस, और ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी रिलेटिव है, टोटल कंप्लीट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कार की स्पीड से डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, कार माइनस वुमन की स्पीड से, ठीक है। तो ये हमारा अगर डिस्टेंस 3 मिनट्स में ट्रेवल कर रही है 130 मीटर्स, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 1 आवर यानी कि 20 टाइम्स होगा, 3 मिनट्स में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आवर आएगा, 130 मीटर्स इंटू 20 कर दोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा 2600 मीटर्स, विच इज 2.6 किलोमीटर। तो इन 1 आवर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 2.6 किलोमीटर पर, 2.6 किलोमीटर, ठीक है, और s - 4 हमारा इसी के तो इक्वल होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज 2.6 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड हमारी s - 4, तो 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्विवेलेंट टू रिलेटिव स्पीड, यानी कि s - 4 इज इक्वल 2.6, तो यहाँ से s हमारा आ जाएगा 6.6 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी स्पीड ऑफ द कार, ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो दीज आर द क्वेश्चन इन दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, और सेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे सारे के सारे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।